गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है जॉइंट फैमिली। सो बेसिकली व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? इन इंडिया अ जॉइंट फैमिली इज यूजुअली अ large undivided family where members of more than one generation live together under one roof like grandparents, parents, uncles, aunts and their children. As with every system, the family structure is also evolving. Some reasons for this change are scarcity of living space, an increase in the number of households where both partners work, a jump in the number of single parents, and so on. Let's delve deeper to understand what is keeping this old system alive, evolving, and relevant. Characteristics of a joint family. The family is usually headed by the eldest member of the family. The responsibility of making decisions rests with the head of the family, although family members can give suggestions. The family members share a single kitchen. All the members are expected to contribute financially towards running the family. All the members have to share the household's chores. They should cooperate with and support each other, making the system have its share of both merits and demerits. Advantages of a joint family. Togetherness. Growing up with cousins, uncles, aunts, and grandparents gives children the opportunity to connect with everyone and forge close bonds, especially the bond with grandparents, which almost every child cherishes. This feature is among the key characteristics of a joint household. Second, imbibing family values. Many values that parents want to teach children are taught well in the joint household. Growing up together, children learn to share, care for, and respect everyone. They also learn how to empathize with those around them. Third, shared support system. For working parents who need someone trustworthy to be around their children, this family system is a boon. With uncles, aunts, or grandparents around who care for children and have their best interest in mind, parents feel less worried. Division of labor. A big family works as a big team, especially when it comes to doing household chores like cooking and cleaning, bathing, etc. Family members get together and ensure that tasks are done on time and sometimes even before time. As a result, no family member ever feels stressed about work. Financial security. All the earning family members contribute to the common fund for household expenses. This system also acts as a security net. When a member suffers monetary loss or loss of job, other gets together to ensure that his or her daily needs are taken care of. Importance of the joint family. Teach cooperation and optimum use of resources, helps members understand and bond with each other, teach the concept of one for all and all for one, makes elders feel wanted and supported. Disadvantages of a joint family. Living in a joint family has advantages as well as disadvantages. This is why people are shifting in living in a nuclear family rather than a joint family. To list a few. First, lack of privacy. One major issue with the joint family is sacrificing privacy. There is no privacy when living in a joint family. If you are sad, distressed, and don't want to discuss your problem with anyone, it is not respectful in a joint family. Second, taking your own decision is not possible. You are not permitted to take your own decisions. Even a small decision will pass on to all elders and then will be taken. Third, parenting cannot be done on your own. If your child has done something wrong, she cannot be beaten or scolded by the mother. The child gets spoiled as the mother is scolding, and the elder members keep pampering the child and forgiving the child on the mother's behalf. Fourth, children are not independent. Children born and raised in a joint family cannot make their own decisions. It is tough for them as they have a habit of discussing everything with their elders. Thus, they lack confidence and decision making qualities. Fifth, daughters in law feel dominated by the elders.
There is a difference between a daughter and a daughter-in-law in many joint families. Both are not treated equally. Many daughter-in-laws complain that they are dominated by the mother-in-laws and are forced to follow old traditions. They need to follow specific rules and regulations set by the elders in the family. Conclusion. Everyone wants to raise their child well, whether in a nuclear or a joint family. Raising a child is challenging as the parents want their children to learn to be respectful, obedient, skillful, and very social. They think this is possible when a child grows in a joint family. Thank you. हेलो एवरीवन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। आज मैं आपको बताऊंगी गाँव और शहरों की लाइफस्टाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जनरली दोनों की अपनी अपनी जगह पे एडवांटेजेस और अपनी अपनी जगह पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि गांव में हम देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो कितना क्लीन, पोल्यूशन फ्री, नॉइज लेस और कितना हरा भरा होता है। वहीं हम शहरों में देखते हैं कि सारा दिन नॉइजी एनवायरनमेंट, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट एंड ग्रीनरी तो वहाँ पर देखने को ही नहीं मिलती। हम देखते हैं कि गाँव के अंदर हमारा जो हमारे जो गांव के लोग हैं वो खेती पर निर्भर है, लेकिन शहरों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है। नो डाउट कि जो शहर है वो गांव से ज़्यादा डेवलप है, इसलिए हमें गांव को भी डेवलप करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। हम देखते हैं कि शहरों के अंदर लोग, फिर भी पॉपुलेशन शहरों के अंदर ज़्यादा है। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हमें जितनी भी फैसिलिटी है वो सारी शहरों के अंदर आसानी से मिल जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, हर टाइप की फैसिलिटी जो है वो हमें शहरों के अंदर मिल जाती है। बट गाँव में क्या है, ऐसा नहीं होता। गाँव में जॉब सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, लेकिन शहरों के अंदर डिफरेंट टाइप की होती है, इसलिए लोग ज़्यादातर उधर माइग्रेट कर देते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर गाँव के हमें नुकसान है वहाँ पर हमें फ़ायदे भी हैं। हमारा जो एक किसान जो हर पूरे देश का पेट भरता है, शायद पूरे वर्ल्ड का पेट भरता है, वो गाँव में रहता है। हम वही देखते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारी 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज़ादी के टाइम पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंगेज थी, और हमने देखा कि सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही हमारा देश जो है वो सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट हुआ था। तो हमें ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए और ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए कि गाँव में तो कुछ है ही नहीं। अगर एक किसान भी ऐसे ही सोच रखे कि मुझे शहरों की तरफ माइग्रेट करना है, मुझे तो गाँव में रहना ही नहीं, तो फिर हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन खाली पेट ही सोए, क्योंकि हमारे जितने भी फूड ग्रेन्स या कुछ भी होता है वो सारी गाँव से ही आती है। अब हम देखते हैं कि शहरों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो उधर माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से नहीं रह पाते, जैसे कि उन्हें हेल्थ रिस्क होती है क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल गुरुग्राम और दिल्ली में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण पोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा है। वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा उधर ट्रैफिक होने के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं, और बहुत सारे फैक्टर जो है उनको अफेक्ट करते हैं। लेकिन विलेज में क्या होता है कि लोग स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सुबह शाम खेतों वगैरह में चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनको जो सांस वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर भी पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता है, इसलिए वो ज़्यादा जीते हैं शहरों के मुकाबले। शहरों में अगर 50 साल की उम्र है तो गाँव में 60-70 आराम से चल जाती है। शहरों में हम देखते हैं कि जो पीपल्स है वो स्ट्रीट फूड ज़्यादा मतलब खाते हैं, जैसे कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन गाँव में ऐसे नहीं होता। गाँव में बहुत कम लोग खाते हैं। उधर गाँव में जित Good morning, all of you. Today I'm here to speak about nuclear family and its advantages and disadvantages. तो सबसे पहले एक न्यूक्लियर फैमिली होती क्या है? एक न्यूक्लियर फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जो कि वो जो स्मॉल होती है और कम से कम उसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं। हमें न्यूक्लियर फैमिली अर्बन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उनका अप्रोक्स नंबर 14 से 15 लोग एक फैमिली के अंदर तो होते हैं। अब अगर हम बात करें कि एडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर फैमिली के, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है।
जैसे कि अगर अपन एडवांटेजेस की बात करें तो पहले तो यही है कि लो एक्सपेंस होता है, फिर इनका खर्चा कम होता है क्योंकि अगर जने कमाएंगे तो बिजली का बिल भी कम आएगा, और अदर फैक्टर्स भी होते हैं कि उनके जो खर्चे हैं वो भी कम होंगे क्योंकि लोग नहीं है इतने, वो कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। इवन दे डोंट नीड अ बिग अपार्टमेंट, वो एक छोटे से अपार्टमेंट में भी रह सकते हो या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा बड़े घर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे कि एक बड़ी फैमिली को ज़रूरत होती है। और कह सकते हैं कि ना वो हार्श कंडीशन है, अगर उनके घर में कोई कंडीशन चल रही है जो कि अच्छी नहीं है, तो वो कम से कम लो बजट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे एक अच्छा है न्यूक्लियर फैमिली का एडवांटेज वो ये है कि हम प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं, और जो चिल्ड्रन है ना वो अपने स्टडी को भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो घर का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा काम और शांति भरा होएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, बच्चे ना अपनी स्टडी को भी मेंटेन कर सकते हैं। और इसका जो एक और एडवांटेज ये है कि फैमिली इश्यूज बहुत कम होंगे, अगर बहुत कम लोग हैं तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी बात पे झगड़ेंगे, क्योंकि सहमति बहुत जल्दी हो जाएगी कम लोगों के होने के कारण। तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस जो हमने डिस्कस करे न्यूक्लियर फैमिली के। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि वो जो बंदे हैं ना वो आइसोलेटेड सा फील करते हैं, अलग अलग फील करते हैं, अगर 2 से 3 मेंबर हैं अगर एक फैमिली में, और अगर उस फैमिली में बच्चे हैं तो वो ना उनका बिहेव भी थोड़ा ना खराब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं रहते हैं। अगर फैमिली में जो कमाने वाला इंसान है वो अकेला ही है तो उसपे वर्कलोड भी बढ़ जाता है, हालांकि उसके पास बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है पर फिर भी उसपे एक तरीके से जो काम बंट जाता है एक जॉइंट फैमिली में वो नहीं होता, उस पर वर्कलोड ज़्यादा बन जाता है। अगर उनको लैक ऑफ गाइडेंस भी होता है, अगर कोई टफ सिचुएशन आती है तो उनके बड़े जैसे एल्डर ने एक्सपीरियंस से उनको बता सकते हैं, तो उनको लैक ऑफ गाइडेंस भी होती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं चलता। और कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना वो उनका बिहेव चेंज हो जाता है, फिर उनमें कुछ कह सकते हैं कि संस्कार की कमी हो जाती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें कैसे बड़ों से बोलना चाहिए। अगर दोनों मम्मी पापा जॉब करते हैं तो बच्चे मतलब कहने का मतलब कि थोड़े अनडिसिप्लिन हो जाते हैं और वो लोनली कल्ले कल्ले भी फील करते हैं, और उनके लिए ना किसी के सामने जाना ऐसे ओपन होना वो तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है। तो अगर आप ये कहें कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़िया है फिर जॉइंट फैमिली, तो ये तो ऐसे है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते ही हैं। तो आजकल की कंडीशंस ऐसी हैं कि कई बार लोगों को घर से बाहर काम करने जाना पड़ता है तो उन्हें न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़ता है। तो ये तो है नहीं कि कौन सी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और कौन सी बढ़िया नहीं होती है। ये एक सिर्फ कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी फैमिली में रह रहे हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे माय टॉपिक इज जेंडर प्रेजुडिस। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि जेंडर प्रेजुडिस होता क्या है। ये होता है दो जेंडर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाना, जैसे कि लड़के और लड़की के बीच में किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, जब से बच्चे का जन्म होता है तब से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो घर में ले लो, सोसाइटी में ले लो, इंस्टीट्यूट्स में हो, चाहे जॉब्स में हो, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ में हो, कहीं भी हो, फीमेल्स और मेल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया ही जाता है। अब इसके अंदर रीजंस क्या है, इसके सोसाइटल रीजंस भी हैं जो अभी मतलब कि लोगों की धारणाएं हैं कि हमें क्यों बेटी प्रेफर नहीं करनी, और एंशियंट इंडिया में क्या वैल्यूज थी उनकी और कैसे कैसे उनकी पोजीशंस चेंज होती गई। सो एंशियंट इंडिया के अंदर तो वुमेन्स को एज अ देवी कंसीडर किया जाता था, बहुत ज़्यादा माना जाता था उन्हें, और उनके अगेंस्ट में इतना कुछ नहीं था। ये हम वेदास के अंदर, उपनिषद के अंदर देख सकते हैं, इसके प्रूफ्स मिले हैं। पर मेडिवल पीरियड के अंदर क्या हुआ कि इंडिया को इन्वेड कर लिया गया, पॉलीगैमी प्रैक्टिस होने लगी, एक ही आदमी की काफ़ी सारी वाइफ्स होती थी। उसके बाद सती प्रथा, पर्दा प्रथा और ये सब भी स्टार्ट हो गया। सो इसकी वजह से वुमेन्स की जो कंडीशंस थी इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हुई। अब टाइम के साथ साथ इंडिया डेवलप हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें इसका पॉजिटिव यूज़ करने की बजाय उन्होंने क्या किया कि वो पता लगा लेते थे कि बेटी है बेटा, और फिर उसके बाद अगर बच्ची होती थी तो उसको मरवा दिया जाता, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं या फिर फीमेल फिटिसाइड भी कहा जाता है। सो इसके भी कुछ रीजंस है अपने पीछे कि बेटी को प्रेफर क्यों नहीं किया जाता। अभी तो माइंडसेट बन गया कि बेटी चाहिए ही नहीं, पर इसके भी कुछ रीजंस है। वो कैसे कि जैसे
पहले क्या होता था कि फीमेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सती प्रथा वगैरह स्टार्ट हो गई थी, फीमेल्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स भी बढ़ गए थे, उनका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था और अभी भी बढ़ता ही है, जैसे कि रेप्स वगैरह, डॉली वगैरह और ये सब, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस। तो उनको था कि हमारी बेटी को बचाएंगे कैसे, तो कोई बेटी को प्रेफर करता ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को एज कम्पेयर टू मैन कम स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, वीक समझा जाता है, और सोसाइटी में पैट्रियार्की है हमारी। और दूसरी बात ये है कि लड़कियों को पराया धन माना जाता है, उनको वो मानते हैं कि इसको तो चले ही जाना है, तो उसके बाद उनकी जो देख रेख है वो तो उनका बेटा ही करेगा, तो इसलिए वो बेटे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अबव बेटी। उसके बाद जो काम होते हैं जैसे कि हाउसवाइफ हो गया, तो उसको इतना कंसीडर नहीं किया जाता जितना कि अगर एक आदमी बाजा की काम करे तो। और अब एक आदमी को बाजा की काम करना तो वो सिर्फ काम करता है, पर अगर एक फीमेल वर्कर हो तो फिर वो क्या करेगी, पहले घर का काम करेगी, उसके बाद उसको बाजा के भी काम करना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो काम करेगी भी तो जॉब्स पे क्या होता है कि जो मैन होते हैं उनको ज़्यादा पे किया जाता है, उन वुमेन के लिए जो वर्किंग कंडीशंस है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या फिर जैसे कि आर्मी में मान लो तो उनको सर्टेन एक काम दे दिए जाते हैं कि उन्हें वही करना, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि वो फाइट्स वगैरह, बॉर्डर वगैरह पे जाना भी उनको अलाउड नहीं होता। और अभी अभी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, पर अभी भी इतना ज़्यादा सही नहीं हुआ है, ये डिग्निफाइड जॉब नहीं होती उनकी वुमेन की, और वहाँ पे भी उनका वर्क प्लेस पे भी हरेसमेंट किया जाता है, तो लोग बच्चों को इतना जॉब, लड़कियों की जॉब प्रेफर भी नहीं करते उनके घर वाले इसी कारण से। वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, उनके अगेंस्ट क्राइम, रेप, ये सब का रेट भी बढ़ता जाता है। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं और काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया भी है, और धीरे धीरे अब काफ़ी चेंज आ जाएगा। हमें क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ा देनी चाहिए, 50% रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, ताकि सभी का मतलब इक्वली रोल प्ले किया जाए। और जो इन सब को नहीं मानी उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देनी चाहिए, और जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना चाहिए वुमेन के अंदर की, जो जो पॉलिसीज आई हैं ताकि उनका लाभ उठा पाएँ, और उससे उनकी काफ़ी हेल्प हो ग्रोथ के अंदर। और जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी, भ्रूण हत्या कम हो गई थी, बच्चों को एजुकेशन में भी काफ़ी हेल्प हुई। सो ये सब। Good morning, everyone. Today, my topic is wormhole. A wormhole is a hypothetical structure connecting disparate points in spacetime and is based on a special solution of Einstein field equations. A wormhole can be visualized as a tunnel with two ends at separate points in spacetime. Wormhole can consistent with the general theory of relativity, but whether wormholes actually exist remaining to be seen. Many scientists postulate that wormholes are merely projection of a fourth spatial dimension, analogous to how a two-dimension being cloud experience only part of a three-dimensional. A well-known analogy of such constructors is provided by the Kellin bottle, displaying a hole when rendered in their dimension but not in four or higher dimension. In 1995, Matt Whistler suggested there may be many wormholes in the universe is cosmic strings with negative mass were generated in the earlier universe. Some physical such as Kip Thorne has suggested how to make wormholes artificially. Thank you.